નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના વર્ચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મ પર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું પંકજ શર્મા. આજે સીબીએસઈ બોર્ડનું ધોરણ 12 અને ધોરણ 10 નું પરિણામ જાહેર થયું છે. ધોરણ 10 ના પરિણામમાં 93.66% આવ્યું છે, જ્યારે ધોરણ 12 નું 88.39% પરિણામ આવ્યું છે. ત્યારે આજે આપણે અમદાવાદના વિદ્યાર્થીઓને મળીશું, કારણ કે અમદાવાદના ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે જેઓ ખૂબ જ સારું પરિણામ પ્રાપ્ત કરીને આવ્યા છે. ત્યારે તેમના પ્રતિભાવો કેવા છે, તેમની સફળતા પાછળ તેઓ કોને શ્રેય આપે છે એ જાણીશું. આપણી સાથે અમદાવાદના બોપલથી તુલિપ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના સીબીએસઈ ના વિદ્યાર્થીઓ આપણી સાથે જોડાયા છે. સૌથી પહેલા આપનું નામ જણાવશો અને આપનું પરિણામ શું આવ્યું છે કહેશો. સર, મારું નામ નકુલ દેસાઈ છે. હું 12th સીબીએસઈ કોમર્સ સ્ટ્રીમનો વિદ્યાર્થી છું ટ્યુલિપ સ્કૂલથી, ને મારા 95.4% આવ્યા છે. ખૂબ જ સરસ, કોંગ્રેચ્યુલેશન. થેન્ક યુ સૌથી સર. પહેલા તો એ જણાવો કે આટલા સારા પર્સન્ટેજ તમારા આવ્યા છે, એમાં કોઈ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ હતું તમારું, કે કેવી રીતે તમે મેનેજ કરતા, અને આટલા ટકાવારી પાછળ તમારી મહેનત કેવી રહી? સર, જો મારા પેરેન્ટ્સે મને એ રીતે જ કીધું હતું કે તમે હંમેશા જેટલા આર્સ ભણો એના કરતાં કેટલા ઇફેક્ટિવલી તમે સ્ટડી કરો છો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો હું મારી પ્રિપેરેશનમાં 6 to 8 hours જ વાંચતો હતો, અને એન્ડમાં 8 to 10 hours વાંચતો હતો. અને ઇટ્સ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ કે યુ ડિટોક્સ યોર સેલ્ફ એન્ડ ટેક ફ્રીક્વન્ટ બ્રેક્સ, એન્ડ વોટ એવર યુ સ્ટડી વિથ યોર ફૂલ હાર્ટ. એન્ડ માય પેરેન્ટ્સ હેવ સપોર્ટેડ મી અ લોટ. અને હું મારી સક્સેસ પાછળનો શ્રેય મારા પેરેન્ટ્સ અને મારા ટીચર્સને, તેજસ સરને આપવા માંગીશ. જી, સ્કૂલના સ્ટાફમાં ખાસ જે સબ્જેક્ટ તમારા માટે ટફ હતા, અથવા જે મેટર તમને, જે ચેપ્ટર તમને સમજમાં ના આવે, તો તમે એને કેવી રીતે ટેકલ કરતા? એક્સ્ટ્રા ટાઈમ આપતા કે પછી સ્કૂલમાં આવતા, કેવી રીતે કરતા? તો સર, મને ફોર એક્ઝામ્પલ અકાઉન્ટ્સમાં બહુ પહેલા ભૂલ પડતી હતી. તો હું એ જે સબ્જેક્ટ હોય એને કન્સોલિડેટેડ 2 કલાક આપતો હતો અને એ રીતે ભણતો હતો. હમ. અને એનાથી મને બહુ હેલ્પ થઈ છે. મારા સ્કૂલના ટીચર્સે બી મને ઘણી હેલ્પ કરી છે એની માટે. ઓકે, તમારા પર્સન્ટેજ ખૂબ જ સારા આવ્યા છે. આગળ તમે શું કરવા માંગો છો? સર, હું સીએ પરસ્યુ કરવા માંગુ છું. ઓકે, ઓકે. બીજા પણ વિદ્યાર્થીઓ હશે, એમને પણ ફ્રેમમાં લાવશો. આપને ફરી એકવાર અભિનંદન. થેન્ક યુ. જી, આપનું નામ જણાવશો. ગીતિકા રાવલ વકલા. જી, ગીતિકા, તમારા કયા ધોરણમાં કેટલા ટકા આવ્યા છે? मैं अभी करंट આપણો ઓડિયો અને વિડીયો બંને જતા રહ્યા છે. ફરી એક વખત હું વિનંતી કરીશ કે તમે ફરીથી એકવાર કનેક્ટ થાવ મારી સાથે, ગીતિકા, કારણ કે તમારો વિડીયો અને ઓડિયો બંને જતા રહ્યા છે. તો આપણી સાથે તુલિપ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ બોપલ અમદાવાદના વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા હતા, અને આપણે ફરી એકવાર એમની સાથે કનેક્ટ થવાનો પ્રયત્ન કરીશું, કારણ કે આપણે એ જાણવું છે કે વિદ્યાર્થીઓની મહેનત કયા પ્રકારની રહી છે, વિદ્યાર્થીઓ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે કરતા, અને સીબીએસઈ બોર્ડમાં જ્યારે તેઓ પરીક્ષા આપવા બેઠતા હોય છે ત્યારે તાણ જે છે, મગજમાં કોઈક વિષયને લઈને માનસિક તાણ અનુભવતા હોય છે, તો એને કેવી કેવી રીતે તેઓ દૂર કરતા હતા, સમય મેનેજમેન્ટ કેટલું મહત્વનું છે એ પણ ખૂબ જરૂરી છે. ફરી एक वक्त આપણી સાથે ગીતિકા જોડાયા છે. जी गीतिका, बताइए आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं और आपका रिजल्ट क्या आया है? मेरा रिजल्ट 96.8% आया। बायो स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, पीसीबी। और कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले गीतिका आपको। थैंक यू, थैंक यू। अब जरा ये बताएं, देखिए काफी लोग आपको देख रहे हैं, तो काफी स्टूडेंट हैं आपको देख के, वो भी तैयारी करेंगे आने वाले सालों में, तो उनको बताएं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे तय करते हैं परीक्षा की तैयारी करने के लिए। क्या सब कुछ छोड़ना पड़ता है, या फिर सब कुछ करने के बावजूद भी आप अच्छी तरह से मार्क्स ला सकते हैं? नहीं नहीं, सब कुछ छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बस इफ़ेक्टिव स्टडिंग करो, और पूरे दिन का बस अगर 2 घंटे या 3 घंटे भी पढ़ते हो इफ़ेक्टिवली, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड आई वुड से कि फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लिया करो। और पर्सनली अगर मूवी अच्छा लगता है तो मूवी देखो, बाहर नीचे जाना है तो फिर नीचे जाओ। अगर पेरेंट्स से बात करना है तो पेरेंट्स से बात करो, बट हाँ, इफ़ेक्टिव ब्रेक्स लेके ही तुम लाइक अच्छे से कर सकते हो। अच्छा, स्कूल में आपको कैसे सहयोग मिलता था, और खास करके ऐसे सब्जेक्ट में जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो आप वो उसको कैसे टैकल करते थे? हाँ, पर्सनली मेरा फिजिक्स थोड़ा वीक था, तो भागवत सर ने काफ़ी हेल्प किया। और प्रैक्टिकल्स में भी उनने काफ़ी हेल्प किया था। लास्ट के ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स में उनने जो हेल्प किया, उसमें से ही मुझे प्रैक्टिकल्स में काफ़ी हेल्प आउट हुआ था। और इनफैक्ट उन्होंने प्री बोर्ड्स में भी बताया था कि कैसे आंसर्स लिखना है, और कौन से हैं जो तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है, टॉपिक्स एंड एवरीथिंग। और जो भी मुझे डाउट था, उन्होंने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया था सर ने। अच्छा, क्या आप गीतिका मानते हैं कि ट्यूशन जरूरी है, या फिर स्कूल में ही अगर आप अच्छी मेहनत करते हो तो ऐसे मार्क्स ला सकते हैं?
आई वुड से कि स्कूल में अच्छे से मेहनत करो और टीचर्स जो भी बोले वो सबको फॉलो करो, तो फिर तुम स्कूल से ही कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि ट्यूशन ही करना है और ट्यूशन से ही सब कुछ होता है, मैं वो बिलीव नहीं करती हूँ। स्कूल से हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, आगे आपने क्या गोल रखा है, क्या बनना चाहते हैं, मैंने कौन? अभी इस साल ही नीट दिया है, तो आई एम होपिंग कि मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, और हाँ, बस डॉक्टर बनना है अभी। बहुत अच्छे हैं आपके विचार और बहुत अच्छा है। हम शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आपने जो गोल तय थैंक यू। किया है उसमें आप आगे बढ़े। थैंक यू। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट कौन से हैं? जी, आपका नाम? Porima Maiti, or I got 98.2 percentage in science PCB. ओके, 98% बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you so बताएं, much. आप भी बताएं कि कैसे आप मेहनत करते हैं और आपके जो गुरुजन हैं, जो स्कूल फैमिली है, वो किस तरह से आपको सहयोग करता है? मेहनत तो आई फील लाइक हम सब ने किया है, बट हाँ, मेरे हिसाब से मेन इज यू आर एबल टू reproduce the same results into your paper. You have to stay calm, you have to give your best, you have to focus on the present. और टीचर ने बहुत हेल्प किया है। साइकोलॉजी, माई साइकोलॉजी टीचर, आई थैंक हिम वेरी मच। और फिर प्रैक्टिकल्स के लिए भी आवर टीचर्स दे हेल्प अ लॉट। प्रैक्टिकल्स आई फील लाइक पूरा क्रेडिट उनको ही जाता है, बिकॉज प्रैक्टिकल्स में मैं बहुत डरी हुई थी कि क्या होगा, कैसे होगा, बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट टाइम गिविंग अ ऑफिशियल प्रैक्टिकल एग्जाम। बट या बहुत अच्छा गया, आई एम वेरी थैंकफुल टू दैम। लेकिन कभी-कभी एग्ज़ाम को लेके मेंटली स्ट्रेस भी रहता है कि बोर्ड की एग्ज़ाम है, इतने मार्क्स भी लाने हैं और कहीं स्कूल में भी जाना है, कहीं एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करनी है। तो ये सब स्ट्रेस को कैसे दूर किया जा सकता है जब एग्ज़ाम होती है तब? ये जब बताएँ। एग्जाम स्ट्रेस इज अ वेरी रियल थिंग, मैं भी समझ सकती हूँ। इनफैक्ट आई डोंट थिंक देर इज एनीवन जिसको एग्जाम के आगे नर्वसनेस नहीं होता है। बट आई बिल्कुल। थिंक मेन थिंग इज वही है कि तुम अपने प्रेजेंट में फोकस कर सकते हो, तो जो तुम्हारे हाथ में है उसको आप कंट्रोल कीजिए। अभी रिजल्ट कैसे आएगा, पेपर कैसे आएगा, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यू कैन कंट्रोल योर एफर्ट, यू कैन कंट्रोल योर हार्ड वर्क, तो आप वही उसमें ही फोकस कीजिए। बाकी जो आएगा वो अच्छा ही आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बिल्कुल, आगे आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे, कौन-सी फील्ड में जाना है? अब मैंने भी अभी इस साल ही नीट दिया है, और फिर अच्छा गया है। आई एम होपिंग आई कैन गेट अ गुड मेडिकल कॉलेज और आई कैन बिकम अ डॉक्टर एंड हेल्प पीपल। बस वही मेरा होप है। ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन थैंक यू सो आपको। मच। थैंक यू। नेक्स्ट स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून सर। सुनून आपका नाम और कितने मार्क्स मेरा हैं नाम आपके? दीपिका रावत है सर। अच्छा, दीपिका बताएँ आपका कितने परसेंटेज आए हैं 12th में? मेरे 72% आए सर। 72, कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच अब सर। दीपिका बताएँ कि आने वाले जो स्टूडेंट जो 10वीं या 12वीं में आएँगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किस तरह से शुरुआती मेहनत होनी चाहिए? सर यही कहना चाहती हूँ कि बस मेहनत करिए, मेहनत करोगे तो वो अपने आप ही रंग लाएगा। जस्ट हार्ड लेकिन वर्क। फिर लेकिन हार्ड वर्क में क्या-क्या आता है वो बताएँ? हार्ड वर्क में क्या टाइम मैनेजमेंट आता है? क्या हमें अपने सभी फंक्शंस में या फैमिली फंक्शन में नहीं जाना चाहिए? क्या हमें सिर्फ़ पढ़ाई ही करनी है और कुछ करना नहीं है? थोड़ा इस तरह में इस बारे में भी बताएँ ताकि बाकी स्टूडेंट जो आने वाले हैं वो भी थोड़ा जान सकें। नहीं नहीं सर, मतलब पूरा अच्छे से टाइम मैनेजमेंट, कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, टाइम मैनेजमेंट ही सर सब कुछ है। 6 आवर पढ़ लो, फिर 2 घंटे तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खेल लो। इट्स जस्ट वही कि हर चीज़ साथ में करो, बट थोड़ा स्टडीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। अच्छा, आपने जो 72 आपके आए हैं, क्या इतने ही आपकी अपेक्षा थी या आप ज़्यादा चाहते थे लेकिन कम आए हैं? सर चाहते तो वो ज़्यादा ही थे, बट वो हल्की सी मेहनत हर चीज़ में वो रह ही जाती है, तो तो इट्स ठीक है, मैं खुश हूँ मेरे सब्जेक्ट मार्क्स था? से। वो सब्जेक्ट कौन-सा था जो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, टफ लगा? सर इट्स ऑलवेज ऑफ फिजिक्स, वो थोड़ा टफ था, और इस बार का पेपर भी जैसे कि आपको भी पता होगा वो बहुत ही हार्ड निकला होगा। हुँ, हुँ। ओके, तो आप आगे क्या सोचा है आपने, आगे क्या करना चाहते हैं? सर डॉक्टर बनने हैं, अभी नीट दी है, फिर हुँ, देखते हैं रिजल्ट्स में, ऐसे तो अभी डॉक्टर बनना है। बिल्कुल। कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट स्टूडेंट, हेलो आप सर। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशिता सिन्हा है। निशिता, आप 12th में कितने मार्क्स लाए हैं आज? मुझे 80% आया है। मैं बी ग्रुप में हूँ। ओके, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। आप बताइए कि किस तरह से आप मेहनत करते थे, मेंटल स्ट्रेस को कैसे दूर करते थे? आपके स्कूल में आपको कैसा सहयोग मिलता था?
देखिए, जब आप साइंस लेते हो तो साइंस के साथ साथ स्ट्रेस तो आता ही है, बिकॉज आपको जो सिर्फ बोर्ड की तैयारी नहीं करनी होती है, फ्यूचर में कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसकी भी तैयारी करनी होती है। इसलिए मैं मेरे स्कूल को मैं थैंकफुल हूँ मेरे स्कूल के लिए कि वो हमेशा मुझे इमोशनली मेंटली सपोर्ट करता था, एंड जब मुझे हेल्प चाहिए होती थी दे वर ऑलवेज ऑनलाइन। मैं उनको हमेशा मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर पाती थी। तो आई फील लाइक कि मेरा जितना स्ट्रेसफुल बर्डन था, मेरे स्कूल एंड मेरी फैमिली ने बहुत हेल्प किया उसको ईज आउट करने में। तो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन सा आपको टफ लगा, जिसमें आपके जो मार्क्स थे वो आपने सोचे थे उससे कम है? फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑफ कोर्स सारे साइंस स्टूडेंट्स को डर लगता है उसमें। फिजिक्स एक्चुअली मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, बट जिस हिसाब से इस बार पेपर आए थे उस हिसाब से मेरा फिजिक्स में मार्क्स कम चला गया, तो उसके कारण अच्छा, रिजल्ट भी थोड़ा डाउन हो गया। तो क्या आप ट्यूशन भी करते थे स्कूल के साथ साथ? हाँ, ट्यूशन्स भी मैं करती थी, एंड इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सब टाइम पे। ओके, आगे आपने क्या सोचा है? मैंने भी लाइक सबकी तरह मैंने भी नीट दिया इस बार, एंड होपफुली मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं, मुझे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए अपने फ्यूचर के लिए। अच्छा, आपके माता पिता के बारे में बताएं। वो आपके जो परिणाम आया है, रिजल्ट आया है, उसको देख के उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मेरे मॉम डैड लाइक वो हमेशा मुझसे अच्छा होप करते कि मैं अपने लिए अच्छा एफर्ट डालूंगी एंड मेरे को अच्छे मार्क्स आएंगे। तो लाइक ऑफ कोर्स मैं भी थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी मेरे रिजल्ट के साथ इस साल, बट वो काफ़ी हैप्पी थे कि इवन इफ ट्वेल्थ में कॉम्प्लिकेशंस आए हो उसके बाद भी मैंने 80% लाए। तो वो लोग ओवरऑल बहुत सपोर्टिव थे। इवन इफ नीट भी इस बार हार्ड आया था, तो हार्ड आने के बाद भी उन्होंने मुझे बहुत इमोशनली सपोर्ट किया कि जैसा होगा तूने अपना फुल एफर्ट दिया, वही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। आपने जो सोचा है उसमें आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स थैंक को यू। हमारे सामने लाइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका अय्यर है और मेरा 85% आया है पीसीबी स्ट्रीम में से और मैं खुश हूँ अपने रिजल्ट से। सबसे पहले प्रियंका, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। आपने थैंक काफ़ी यू अच्छी सर। मेहनत की है 85% के लिए। अब बताइए थैंक यू कि सर। स्कूल के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो क्या उसके साथ साथ ट्यूशन जरूरी लगता है आपको, कि करवाना चाहिए, या स्कूल से ही आपको बहुत अच्छा सिखाते हैं ताकि आप उसमें ही अगर आगे बढ़ो, उसमें ही ध्यान दो, तो ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं सर, अगर आप कंप्लीट एक टाइम मैनेजमेंट अगर आप करते हैं और स्कूल का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं भी जब साइंस स्ट्रीम 10th के बाद लेने वाली थी तब मैं थोड़ा कंफ्यूज थी और थोड़ी डरी हुई भी थी कि मैं कैसे क्रैक करूँगी, पर टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। इसलिए अगर आप स्कूल से अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ अगर आप करते हो तो आराम से हो जाएगा। इस क्लासेस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सारे स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि फिजिक्स बहुत टफ लगता है, तो फिजिक्स को आप कैसे टेकल करती थी? क्या स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम देती थी, या आपके टीचर्स जो है वो घर से आपको फोन घुमाते थे कि भाई इस तरह से आपको ये करना है? क्या आप फोन करके पूछते थे? नहीं, फिजिक्स में फिजिक्स तो हार्ड ही था। इस साल का पेपर बहुत ही टफ था, पर मेरा जो फिजिक्स का जो तैयारी था वो पहले से ही मुझे सर ने जो भी डेरिवेटिव्स हो गया, क्योंकि मेरा न्यूमेरिकल्स वाला जो पोर्शन था वो मेरा पहले से ही वीक था, तो सर ने मुझे बोला कि थियरी में ध्यान देना है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस में मुझे हर बार बोलते थे कि एमसीक्यू में ज़्यादा ध्यान दो, उसमें ज़्यादा स्कोर करना है। तो उसकी उनके गाइडेंस की वजह से मेरा फिजिक्स भी इस बार अच्छा गया और रिजल्ट भी अच्छा आया। और सबसे ज्यादा मार्क्स ज्यादातर बायोलॉजी और साइकोलॉजी में आते हैं, मैंने ऐसा हाँ। सुना है। हाँ, क्योंकि अगर आपने बायोलॉजी वैसे तो डिफ़िकल्ट ही है, बट अगर आप बायोलॉजी में पूरा अपना एफ़र्ट डालते हैं, थियरी वाइज़ भी, और अगर आप कंसेप्ट अगर समझ लेते हैं, तो अगर आप खुद से भी अगर आप बनाकर भी लिखते हो या लिखते हो, तो आपको मार्क आ ही जाएँगे, बट कंसेप्ट और बेसिक्स क्लियर होने चाहिए बायोलॉजी में। आपके फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा इस एग्जाम में? अ पूरा सपोर्ट रहा। जब मेरा फिज़िक्स का पेपर टफ गया था तो मैं टेंशन में ही थी कि अगला केमिस्ट्री है तो मैं कैसे क्रैक करूँगी। तो पर पेरेंट्स ने बिल्कुल भी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया। उन्होंने बोला तुमसे जितना होता है उतना करो और अपना पूरा 100% एफर्ट दो। जो जो रिज़ल्ट होगा हम लोग आपके तुम्हारे साथ ही है। सो मैं खुश हूँ। उनका बहुत सपोर्ट रहा है। बिल्कुल। और आगे आपने क्या सोच के रखा है, कहाँ जाना है, कैसे, क्या गोल है आपका?
मुझे रिसर्च साइंटिस्ट बनना है, तो मेरा गोल यही रहेगा कि मैं साइंस ही मैं आगे कंटिन्यू करूँ, और उसमें भी मैंने बैचलर्स मास्टर्स फिर उसके बाद पीएचडी का जो मैंने वो उसकी मैंने तैयारी रखी है, और मैं यही करना चाहूँगी आगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। और थैंक नेक्स्ट यू स्टूडेंट सर। को हमारे सामने लाइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका और आपके परसेंटेज कितने आए हैं? My name is Yoshi Dave and I got 76% in PCB B group. अच्छा, आप बताइए आपकी मेहनत के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह से आप मेहनत करती थी। मेहनत तो दोनों जगह चाहिए होती है क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देनी होती है और आप बोर्ड भी दे रहे होते हो उस वक्त, तो दोनों में प्रॉपरली आपको मेहनत देनी पड़ती है। लेकिन स्कूल वालों की वजह से भी आपकी जो बोर्ड की जो कम टेंशन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपका वीक पॉइंट्स कहाँ है वो आपको बताते हैं, आपको गाइड करते हैं, और सेम वे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हेल्प हो ही जाती है। अच्छा आरुषि, जी, आपका सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा था और सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा था? मेरे लिए भी बायो इजी था। फिजिक्स तो सबकी तरह टफ ही होता है। लेकिन हमारे भागवत सर उन्होंने भी बहुत ही हेल्प की है फिजिक्स में इम्प्रूव करने के लिए, जिस वजह से इम्प्रूव हुआ है। लेकिन बोर्ड का पेपर भी टफ था तो इस वजह से उसमें हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि अगर हमें स्ट्रेस के बिना एग्जाम की तैयारी करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? हम आप साइंस लिए होते तो फिर स्ट्रेस तो आ ही जाता है, लेकिन हाँ, आपका इन्वायरमेंट भी मैटर करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में पढ़ रहे होते हो, और ये आप आप आपके टीचर्स कैसे आपको हेल्प करते हैं और कैसे 24/7 आपको हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। और स्ट्रेस लेने से कुछ हो नहीं सकता, आपको एफर्ट ही पुट करना पड़ता है। आप जितना भी एफर्ट पुट करेंगे उतने ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, आपकी तरफ से मुझे ये जानना है कि हार्ड वर्क जैसे बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो आपकी जानकारी में हार्ड वर्क की डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए हार्डवर्क यही है कि आप जो भी करो आप 100% दो अपने लिए, कि आपको आपने रिग्रेट ना हो कि आपने अपने पुट ऑन नहीं कर पाए, आपने अपनी तरफ से कुछ ट्राई नहीं किया। तो मेरे लिए हार्डवर्क यही डिफाइन करता है। जी, और आगे आपने गोल क्या रखा है, क्या बनना चाहते हैं आप? मैंने नीट दिया है और मुझे भी डॉक्टर बनने का ही गोल है, एंड अभी मैं उसी का ही रिजल्ट का वेट कर रही हूँ कि उसके बाद मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए एडमिशन। अच्छा, अच्छा, ये आपका ही गोल है या कभी-कभी ऐसा होता है कि मम्मी-पापा चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनें, लेकिन ये आपकी कुछ नहीं चाहत अलग होती है? नहीं नहीं, मेरा पहले से ही आई वॉज वेरी क्लियर कि आई वांट टू गो इन मेडिकल ओनली। ओके, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट थैंक यू। स्टूडेंट। यस सर। जी, आपका नाम बताइए जल्दी से और क्या कितने परसेंटेज आए हैं आपके? जी सर, मेरा नाम प्रथम वसीन है और मेरे को 90.4 आए हैं 12th सीबीएसई रिजल्ट्स में, एंड आई एम फ्रॉम 12th ह्यूमैनिटीज। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अब जल्दी से हमें बताएं, हमने सारे स्टूडेंट से यही जाना है कि कैसे मेहनत आप करते हैं और आपका फैमिली का सहयोग, स्कूल से कैसे सहयोग मिलता है। आप उससे कुछ अलग बताएं, आप मेहनत के अलावा और क्या-क्या करते थे? ये क्योंकि ये मार्क्स भी लाने हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मेहनत ही मेहनत, ट्यूशन भी होता है, कोई एक्स्ट्रा टाइम भी देना होता है। तो आप हार्ड वर्क कैसे करते थे? सर आई थिंक सो हार्ड वर्क ज़रूरी है, पर उसके साथ आपको मिनी ब्रेक्स लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक अपना माइंड फ्रेश नहीं रखेंगे तो आप इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे अपने माइंड में। वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेगा नहीं, और मेंटल फटीग होगा तो आप एग्जाम के वक्त पूरा ब्लैकआउट हो जाएंगे। तो आपको बीच बीच में रेजुविनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कैसे अपना टाइमिंग में जो टाइमिंग मैनेजमेंट होता है बोर्ड के एग्जाम से पहले-पहले, क्या आप पूरी साल पढ़ते थे या फिर जब बोर्ड की एग्जाम आती है उसके 1 महीने पहले से ये तैयारी में जुट जाते थे? कैसे करते थे? सर इंटेंसिटी इंटेंसिटी जब बोर्ड के एग्जाम आते थे तो इंटेंसिटी और हाई होती रहती थी, लो टू हाई। उसके पहले जैसे कि अगर रेजुविनेट होना हो तो मैं मूवीज वगैरह देखता था, स्पोर्ट्स वगैरह खेलता था, तो उससे आपका माइंड फ्रेश रहता है। तो आपका माइंड फ्रेश रहता है तो सर आप कॉन्सेप्ट सही से पढ़ सकते हो। अच्छा, आपने यही इतना ही सोचा था कि आपके 90 प्लस आएँगे या उससे ज़्यादा सोचा था और कम आए हैं? नहीं सर, मैंने तो ऑनेस्टली मैंने 85 प्लस सोचा था, मतलब मैं थैंकफुल था 85 के लिए। तो सर 90.4 आ गए तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। अच्छा, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं न्यू ट्यूलिप इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पर कैसा सहयोग मिला स्कूल में टीचरों का, अपने जो ट्रस्टी मंडल है उसका?
यस सर। सर मैं ट्यूलिप में 11th में आया था, और जो मुझे एक्सपोजर ट्यूलिप इंटरनेशनल स्कूल में मिला, मेरे को नहीं लगता कोई और स्कूल में मिलता। और आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि मुझे वो एक्सपोजर मिला, वो मुझे वो एक्सपीरियंस करने दिया ये 2 साल, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। या और आगे आपने क्या सोचा है, क्या बनना चाहते हैं, कहाँ जाना है, किस जी फील्ड में जाना है? जी मैं लिबरल स्टडीज ले रहा हूँ आगे। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब નેક્સ્ટ સ્ટુડન્ટ. યસ અચ્છા, સર. તેજસ સર, હવે તમારી સાથે જોડાયા છું એટલે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ સાથે વાતચીત થઈ. મને ખરેખર આનંદ થયો કે સ્કૂલની અંદર 100% પરિણામ આવ્યું છે અને બધા જ યસ સર. સ્ટુડન્ટ લગભગ 80%થી વધારે, કોઈ 90%થી યસ સર. વધારે છે, કોઈ 98% સુધીના પણ વિદ્યાર્થીઓ છે. તો આ ખરેખર ખૂબ સારી મહેનત તમે કરાવી રહ્યા છો. પહેલા તો મને એ જણાવો કે સ્કૂલ પરિવાર કેવી રીતે આ વિદ્યાર્થીઓને સફળતામાં શ્રેય આપે છે, કેવી રીતે મહેનત કરાવે છે, શું રોલ હોય છે એમનો? આઈ થિંક સો સર, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્કૂલમાં ટીચર્સનો રોલ બહુ અગત્યનો હોય છે. જે આપણી પાસે અહીંયા સ્કૂલમાં જે ફેકલ્ટી છે, જેવી રીતના અમારા ફિઝિક્સના સરની બધાએ બહુ વખાણ કરી, ભાગવત સર જેમનું નામ છે, એ અરાઉન્ડ અમારી જોડે 17 વર્ષથી જોડાયેલા છે. હા, પછી કેમેસ્ટ્રીના જે સર છે એ પણ અરાઉન્ડ 15 વર્ષથી જોડાયેલા છે. એટલે બધી જૂની ફેકલ્ટીઝ છે જે છોકરાઓને એમના એક્સપિરિયન્સ શેર કરે છે. આપણે બધા છોકરાઓને અહીંયા રેડી કરીએ છીએ, એમને થોડુંક અસિસ્ટ કરીએ છીએ, કારણ કે છોકરાઓ તો બધા હોશિયાર હોય છે, પણ ફાઇન ટ્યુનિંગ કરવાની એક રીત હોય છે, જે આપણે એમને કેવી રીતના ફાઇન ટ્યુન કરી શકીએ. આ જ આપણા એક્સપિરિયન્સ ટીચર્સ એમને કેવી રીતના હેલ્પ કરી શકે. કેટલા એવા બાળકો છે આમ જે આજે જેમને તમે વાત કરી, એમાં કેટલા બધા બાળકોએ એવું પણ કીધું કે કોઈ એક્સ્ટ્રા ટ્યુશનની જરૂર નથી. સાચું કહું તો કોઈ બાળકોને એક્સ્ટ્રા ટ્યુશનની જરૂર નથી. અગર એ બાળકો સ્કૂલમાં પૂરતો ટાઈમ આપે અને ટીચરો પાસે પૂરતો ટાઈમ, કારણ કે ટીચર્સ પણ સ્કૂલમાં આખો દિવસ એમને અસિસ્ટ કરવા માટે જ છે, અને એમની જોડે એ શરમાયા વગર અને સંકોચ વગર એમની જોડે ટાઈમ આપે, તો આ બહાર છોકરાઓએ જવાની જરૂર નથી. ઇનફ છે એમાં જ એમના ડાઉટ સોલ્વ, અને મેઇન વસ્તુ છોકરાઓનું જે છે એ સેલ્ફ સ્ટડી અને પ્રેક્ટિસ છે. અગર સેલ્ફ સ્ટડી છોકરાઓ સરસ કરશે, એટલે એ પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે, તો એના નવા ડાઉટ્સ ઊભા થશે. નવા ડાઉટ્સ જે ઊભા થાય એ ટીચર એને સોલ્વ કરે. અને નવી નવી ટેકનોલોજી પણ આવી રહી છે. અત્યારે આપણે જોઈએ છે કે એજ્યુકેશનમાં ડિજિટલ એરા આવી ગયો છે. આપણે ડિજિટલ એરા જોડે સાથે ચાલી રહ્યા છે. અત્યારે આપણી પાસે છોકરાઓને 3D ડાયાગ્રામ્સ દેખાડવાની પણ આપણી પાસે પ્રોવિઝન છે. તો આ બધું દેખાડીશું તો એમના જે બેસિકલી કન્સેપ્ટ છે એ આખા ક્લિયર થશે, ડાઉટ ક્લિયર થશે. એ આપણે એમને એ ડાઉટ ક્લિયર કરીશું તો એ સારું પરફોર્મ કરી શકે. આપણે એઝ અ સ્કૂલ શું છે, સ્કૂલ એક ટૂલ છે એમના માટે, કે એમને આ બધી વસ્તુ આપે, અને પછી અમે આજે જ્યારે આટલું સારું રિઝલ્ટ આવતું હોય છે, તો અમને બહુ એની ખુશી છે કે આટલા સારા છોકરાઓ સરસ બધું પરફોર્મ કરે, સરસ બોલે, અને સારું નાગરિક બધા આગળ જઈને અને કોઈક લોકો સિવિલ સર્વિસીસમાં જવા માંગે છે. આજે આપણે જોયું કે છોકરીઓનો રોલ રિસન્ટલી વધતો જાય છે, અને આજે આપણે રિઝલ્ટમાં પણ એવું દેખાયું કે છોકરીઓએ આઉટશાઇન કર્યું છે. સો એ બહુ ગૌરવની વસ્તુ છે. આઈ થિંક સો ગર્લ પાવર કહીએ કે વુમન પાવર ને એમ્પાવરમેન્ટ બહુ આગળ છે, અને આઈ થિંક સો આ આપણું સરકારનું પણ એક વિઝન છે, અને આપણે બધાએ એ બાજુ કામ કરીને અને સરસ સહયોગ આપીએ, એવું અમારી સ્કૂલની ઈચ્છા, સ્કૂલના તરફથી બેસ્ટ વિશેસ છે સર. ખૂબ જ સારા વિચાર અને ખૂબ જ સરસ સહયોગ તમે વિદ્યાર્થીઓને પણ આપી રહ્યા છો. એક છેલ્લો સવાલ આપણે કરીશ કે આ વખતની એક્ઝામના પરિણામો જે આવ્યા છે એમાં ફરી એકવાર એવું થયું છે કે વિદ્યાર્થીઓ કરતા વિદ્યાર્થીનીઓએ બાજી મારી છે અને સૌથી વધારે Yes, પાસ sir. થઈ છે. અને હા તમે સર. ખાસ કરીને શાળા દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને જે ફિલ્ડમાં આગળ વધવું છે, જે મેડિકલ લાઈનમાં કોઈ ડોક્ટર બનવા માંગે છે, તો કોઈ રિસર્ચમાં જવા માંગે છે, તો એના માટે સ્કૂલ પરિવાર કઈ રીતે એમને સપોર્ટ કરે છે આગળના ફિલ્ડમાં જવા માટે? ઓકે, તો સર આમાં સૌથી પહેલાં જ્યારે ટર્મ ચાલુ થાય સ્કૂલનો, ત્યારથી જ અમે લોકો રેગ્યુલર સેમિનાર્સ કરીએ છીએ. તો એ સેમિનાર્સમાં અમે કરિયર કાઉન્સેલિંગ કરીએ પહેલાં, કારણ કે છોકરાઓને બધું ખબર નથી હોતી. અત્યારે એટલી બધી સર નવા ટાઈપની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ્સ ચાલે છે, એટલે પહેલાં એમને ગાઈડન્સ આપીએ.
કરિયર કાઉન્સેલિંગ કરીએ. એના પછી જે સારા અમને જે ફિલ્ડના સારા નોલેજેબલ પીપલ હોય અમે એમને બોલાવીએ છીએ, એટલે ડૉક્ટર્સને બોલાવીએ છીએ અને સેમિનાર્સ કરે. પછી અમે સારા જે વ્યક્તિ હોય જે છોકરાઓને મોટિવેટ કરી શકે અમે એ લોકોને ઇન્વાઇટ કરીએ. એના પછી અમે બેસિકલી છોકરાઓને વિઝિટ્સ કરવા લઈ જઈએ, એ પણ એમની રુચિ વધારે. જેવી રીતના અમે ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વિઝિટ કરવા જઈએ છીએ, કોમર્સના છોકરાઓને અમે સ્ટોક માર્કેટ લઈને જઈએ છીએ, જે હ્યુમેનિટીઝના છોકરાઓ છે જે લોકોને વધારે બેસિકલી એ લોકોને રેડિયો સ્ટેશન્સ છે કે મીડિયા હાઉસ છે એવી વિઝિટ્સ કરાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ. સો બેસિકલી આ લોકોની રુચિ કેવી રીતના વધી શકે, આ લોકો કેવી રીતના વધારે જાણી શકે, બસ એ જ અમારો ગોલ છે કે આ છોકરાઓ એટલું બધું આગળ સારું કરે અને સ્કૂલને એમની જર્નીમાં યાદ રાખે. એ જ અમારી આઈ થિંક સો સૌથી મોટી અસેટ છે. બિલકુલ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તેજસભાઈ અમારી સાથે જોડાવા માટે. અને ખરેખર તમારી સ્કૂલમાં જે પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે વિદ્યાર્થીને આગળ લાવવા માટે, પાસ કરવા માટે અને આગળના ફિલ્ડમાં જવા માટે જે જબરજસ્ત કાર્યક્રમો પણ તમે કરો છો, એટલે માત્ર ભણવું જ નહીં પણ ભણવાની સાથે સાથે એવી પ્રવૃત્તિઓ પણ કરવી જેમાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો જે રસ્તો, જે ગોલ છે એ પણ બનાવતા જાય, આગળ વધતા જાય. અને માતા પિતાનું પણ સપનું હોય છે કે હું જે શાળામાં બાળકને ભણાવું છું એ શાળામાંથી બાળક એક ગૌરવશાળી બનીને બહાર આવે, ગૌરવ પ્રાપ્ત કરીને બહાર આવે. અને તમે એમાં ખરા ઉતર્યા છો અને બધા જ વિદ્યાર્થીઓને તમે જે રીતે સારી રીતે ટીચિંગ આપો છો, 100% રિઝલ્ટ આવ્યું છે, એ ખરેખર કાબિલે તારીફ છે. થેન્ક યુ સો મચ અમારી સાથે જોડાવા માટે. થેન્ક યુ સો મચ સર, થેન્ક યુ સો મચ. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા સ્કૂલના બાળકો, સીબીએસઈ 10મા અને 12મામાં જે વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા છે. આપણે તેમની સાથે સંવાદ કર્યો. તમે જોયું હશે કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એ ટ્યુશનની જરૂરિયાત નથી કીધી. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ કહે છે કે સ્કૂલમાં જ્યારે ભણીએ છીએ આપણે ત્યારે જો ક્લાસની અંદર જે લેક્ચર અથવા ક્લાસની અંદર જે સબ્જેક્ટ આપણે ભણીએ છીએ જો એમાં આપણે ધ્યાન આપીએ અને ઘરે આવીને જો આપણે એને રિવિઝન કરી લઈએ તો આપણને છેલ્લે બોર્ડની એક્ઝામ આવે ત્યારે એટલું બધું ભારે મહેનત કરવાની જરૂર પડતી નથી. એટલે આ બધા વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ કરવાનો એકમાત્ર હેતુ એ હતો કે તમે પણ જો વિદ્યાર્થી હો અને આવનારા વર્ષોમાં જો તમે પણ બોર્ડની એક્ઝામમાં આવવાના છો અથવા પરીક્ષા આપી રહ્યા છો અથવા આપવાના છો તો તમારા માટે આ વિદ્યાર્થીઓના અનુભવો ખૂબ કામ લાગશે. એમની તૈયારી, એમના મેનેજમેન્ટ અને એમનો સમય બધી રીતે જે તૈયારી કરતા હોય છે એ માટે તમને ખૂબ જ સહયોગ બની રહેશે આ ખાસ સંવાદ. તો આજના આ સંવાદમાં અત્યારે આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.